Welcome back Gaya Guidance Program. This is Shabab Khan and you are watching Gaya Guidance Program. Very good morning to everyone. In previous session we were studying modals. As you know, it is one of the most important chapters of English grammar, and we studied introductory talk about modals. So today I'll continue the same topic and hope all of you will enjoy the session. So first of all, as you know well that in modal we studied and we gave you basic overview of modals and about what exactly is verbs and its two major classifications like main verb and auxiliary verb, and I also taught all of you that what are the three major characteristics of modals that is very important to keep in mind. And today I am going to teach all of you all structures related to modals. Structure is a part of grammar. It is an integral part. To make you understand grammar easily, I'll make you understand modal through structures. And we in previous sessions I also taught all of you subject, modal, V1 plus object. This is the basic pattern of modals. So we will overview once again it and hope all of you understand it. See, in my class I explained can. Can is very important word, very important word in English grammar. Can means capable of. It shows ability. It shows capacity. Generally it means. Can means सकना. कुड बताया था मैंने, कुड जैसा कैन का पास्ट फॉर्म है. ये एबिलिटी इन पास्ट टेंस बताता है, शो करता है. जबकि मैंने मे बताया था, मे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टर्म. कैन और मे में देर इज ए माइनर डिफरेंस बट मीनिंग इज मोर और लेस सेम. मे जनरली वी यूज फॉर परमिशन, टू टेक परमिशन, टू गिव परमिशन. In the same way might is a past form of may, right? Need, dare, should, must, ought to, would. मैंने सारी चीज को अपने प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया था और एलोबरेट किया था, आप लोग को बताया था. कैन का मतलब सकता है, ये सारी चीज. नाउ लुक हियर. Very important term can. We use it in communicative English. Can का जो literal meaning है, can means capable of. It means capable of. It shows ability. It shows capacity. It shows strength. It shows power. It shows, in previous session I told you that it shows 100% capability of a person. When I use the term can, I can speak English, it means I am confident, I am capable of speaking English, right? So can, जब आप can का इस्तेमाल करते हैं, suppose I can solve your problem. See, can is equivalent to I am able to solve your problem. Both sentences have same meaning. There is no change in the meaning, but I have used it differently, same meaning. In other words, I can also say it, I am capable of solving your problem.
same meaning. In other words, we can also say I have ability to solve your problem. ये चारों सेंटेंस हैं, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल हैव सेम मीनिंग्स. देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग. आई कैन सॉल्व, कैन का जनरल मीनिंग होता है सकना, सकता, सकते. आप किसी वर्ब के साथ वर्ब का पहला रूप लगाइए, पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद वर्ब का पहला कैन लगाइए, V1 लगाइए और फाइनली ऑब्जेक्ट लगाइए. आप कुछ भी बोल सकते हो, आप जिसमें आपके अंदर कैपेसिटी है, क्या क्या आप काम कर सकते हैं. आप देखिए इसे, मैं इसे एलेबोरेट करता हूं. कैन, आप काम क्या क्या कर सकते हैं. मैं टीचर हूं, क्या क्या कर सकता हूं. मैं इस अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकता हूं, आई कैन हेल्प इन योर स्टडीज. मैं लेक्चर दे सकता हूं, आई कैन डिलीवर ए टॉक, आई कैन डिलीवर ए टॉक. अब बोलिए मैं मोटिवेट कर सकता हूं आप लोगों को, तो आई कैन मोटिवेट, राइट. मैं बच्चों को इनकरेज कर सकता हूं. इनकरेज मीन्स हौसला अफजाई करना, मनोबल को ऊंचा करना. मैं फैसला कर सकता हूं, आई कैन डिसाइड. आप बोल सकते हैं कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं, तो आई कैन बिकम ए डॉक्टर. कैन का लिटरल मीनिंग्स सकना, क्षमता, सलाहियत, पावर, स्ट्रेंथ. इसमें सिर्फ सब्जेक्ट लगाएं, कैन लगाएं, वर्ब का पहला रूप कोई भी, कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं आप लोग. कोई वर्ब लीजिए. अब बोलिए मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. मैं विदेश जा सकता हूं, आई कैन गो टू अब्रॉड, जा सकता हूं, क्षमता है, कैपेसिटी है. मैं यूनिवर्सिटी बच्चों को पढ़ा सकता हूं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, सो आई कैन टीच यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. अब बोलिए कि प्रोनाउंस, मैं इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकता हूं. प्रोनाउंस मीन्स उच्चारण करना, आई कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड. मैं एक्ट कर सकता हूं, आई कैन एक्ट. मैं सपोर्ट कर सकता हूं, आई कैन सपोर्ट. तो ये सिंपल वर्ड है जिसमें किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की 100% क्षमता, सलाहियत, काबिलियत को बताता है. जो मैंने एग्जाम्पल बहुत सा दिया था इस पर कि दूसरा जो हमारा मॉडल है वो आप जाने, कुड. कुड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसका हम लोग पास्ट में यूज करते हैं. कुड मीन्स इट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कुड इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. कुड मीन्स सका. अब मैं पढ़ सका इसे, तो बोल सकते हैं आई कुड रीड द हिंदी न्यूज़पेपर, आई कुड रीड द हिंदू. यहां जिस तरह से कैन में हम लोग दिखाया, इसका इक्विवेलेंट है वाज एबल टू. वाज एबल टू. अब इसको आप कह सकते हैं आई वॉज एबल टू रीड द हिंदू, राइट. कुड मीन्स सका. अब बोलिए कल मैं बिजी था, आई वॉज बिजी यस्टरडे. यस्टरडे. इसीलिए सो आई कुड नॉट कंडक्ट माई क्लास. यह पास्ट क्षमता बता रहा है. मैं डरा हुआ था, मैं नर्वस था, आई वॉज नर्वस. आई वॉज नर्वस. सो आई कुड नॉट फेस इंटरव्यू
मैं थका हुआ था, आई वॉज टायर्ड, सो आई कुड नॉट स्टे देयर लॉन्ग। तो इस तरह से हमारा जो कुड मॉडल है वो पास्ट एबिलिटी को शो करता है। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं पढ़ नहीं सका, आई कुड नॉट रीड। मैं ठहर नहीं सका, आई कुड नॉट स्टे। मैं फैसला नहीं कर सका, आई कुड नॉट डिसाइड। मैं सोच नहीं सका, आई कुड नॉट थिंक। मैं अंग्रेजी नहीं समझ सका, आई वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश ग्रामर, आई हैव वेरी पुअर वोकैबुलरी, so I could not understand English. I have never been to convent school. I have been a student of government school since my childhood days. So I was not, I don't have very good involvement of English, so I could not speak English. I know grammar, I know vocabulary, I know pronunciation. In spite of this, I could not speak English. I was very shameful. सी, तो कुड का मतलब होता है किसी इंसान की पास्ट में क्षमता। और मैं बताया था आप लोगों को कि एक सेंटेंस को नॉर्मली वी कैन कन्वर्ट इनटू 3 और 4, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। अब बोलो, मैं आपकी समस्या सॉल्व कर सकता था, आई कुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, लेकिन किया नहीं, आई कुड नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसी का क्वेश्चन हो जाएगा, कुड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, कुड नॉट यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप जब कोई काम नहीं कर सके, अब बोलिए मैं मैथ में बहुत कमजोर था, आई वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश, इसलिए मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं कर सका, सो आई कुड नॉट पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब बोलिए आपकी मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, आई हैड नो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सो आई कुड नॉट ऑपरेट इट। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई हैड नो मनी इन माई पॉकेट, सो आई कुड नॉट बाई ए फ्लैट। तो अंग्रेजी सिखाने का मतलब यही होता है कि अंग्रेजी में जितना अभ्यास कीजिए, बार बार रिपीटेशन कीजिए, और ये रिपीटेशन से क्या होगा, यू विल गेन मास्टरी। द मोर यू यूज द बेटर यू कैन। दिस इज माई मंत्रा ऑफ लर्निंग इंग्लिश। यूज इट, प्रैक्टिस इट। इट इज वेरी सिंपल and all of you know well. इसी तरह से जो हमारा अगला मॉडल है वो मैं भी मैंने बताया था। कैन किसी व्यक्ति की क्षमता और सलाहियत को बताता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, कुड पास बताता है। इसी तरह से मैं का जो मतलब जो होता है मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। ये संभावना, लाइकली टू। नॉर्मली आप बोल सकते हैं जहां किसी इंसान को 100% श्योर रहे वहां कैन लगाओ। जहां आप डाउटफुल हो, सस्पिशियस हो, जहां पॉसिबिलिटी है, जैसे आज वेदर इज वेरी क्लाउडी, मौसम बहुत ही क्लाउडी है, लगता है बारिश हो सकती है, इट मे रेन टूडे। वी मे डिसाइड इट। आज द प्रिंसिपल मे कम टुमारो, प्रिंसिपल इज एब्सेंट टूडे, ही मे कम टुमारो। जब हम 100% श्योर नहीं है, संभावना व्यक्त करना है, जिसका मतलब होता है लाइकली टू, पॉसिबिलिटी शो करता है, वहां हम लोग सभी लोग मॉडल मे का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली इसका मेजर फंक्शन और एक है, मे का जो मेजर फंक्शन होता है परमिशन लेने में, अनुमति लेना और अनुमति देना। हम अपने बड़ों से किसी कार्य करने से पहले इजाज़त लेते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनकी परमिशन जानते हैं। तो इस सेंटेंस को यूज करने के लिए आप सभी मे का प्रयोग शुरू में कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लास में टीचर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको क्लास में एंटर करना है, तो आप अपने टीचर से परमिशन लेंगे अंदर जाने के लिए। मे आई कम इन सर? यस,
यू मे कम इन, टीचर आपको परमिशन देते हैं। अगर आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप अपने टीचर से परमिशन ले सकते हैं। मे आई गो आउट सर? यस। सपोज आपके पास कलम नहीं है और अपने टीचर से कलम मांगनी है, मे आई टेक योर पेन सर? यस, यू मे टेक इट। आप अपने टीचर से, आप किसी ऑफिस में गए हैं और अपने बॉस के से परमिशन लेना कि बैठे कि नहीं, बैठने के लिए मे आई सिट डाउन, पानी ले सकते हैं, मे आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। आप तो मे का नॉर्मली जो फंक्शन होता है, सपोज ये देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है, हमारे सीनियर के सामने बात करनी तो उनसे परमिशन लेना चाहिए। वी आर एडुकेटेड, वी आर सिविलाइज्ड पर्सन। यूं ही नहीं, मे आई फोन यू, मे आई रिसीव, सपोज एक फोन आ रहा है, आप किसी बड़े के साथ बैठे हुए हैं तो बात करने से पहले आप परमिशन ले लो तो ज्यादा अच्छा होगा। मे आई रिसीव कॉल, मे आई फोन माई फादर। तो मे का नॉर्मली परमिशन लेना और परमिशन देने में हम लोग करते हैं। आप इसे प्रैक्टिस करो और मे को अपने क्लास में यूज करो। अंग्रेजी यूज करने से आती है, न कि रटने से अंग्रेजी आती है। जिसका जितना अभ्यास होगा उतना ज्यादा आपको महारत होगी। मे आई बोरो सम मनी, कुछ पैसा उधार ले सकते हैं। सर क्या मैं यहां ठहर सकता हूं? मे आई स्टे हियर। तो नॉर्मली असंभावना करना है, संभावना बताना है। अरे भैया आज लगता है कि बॉस आ सकते हैं, बॉस में काम, लगता है कि आज कुछ हो सकता है, समथिंग मे हैपन। तो जहां आपको पॉसिबिलिटी शो करना है तो मे प्रोनाउंसिएशन इज मे, इट मीन्स पॉसिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव, इसी तरह से हम नॉर्मली हम जानते हैं सभी लोग कि एक सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन में चेंज करते हैं, राइट। जैसे कि आप बोलो कि इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, बादल घिरा हुआ है, आसमान में पूरा घिरे हुआ मौसम है, इसलिए वर्षा हो सकती है। इसको नेगेटिव बनाएंगे आप लोग, इट मे नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हो सकती है। और क्या इसी को क्वेश्चन बनाने के लिए मे इट रेन, क्या आज वर्षा हो सकती है। आपके एग्जाम में इसके डबल फंक्शन है, आप इसका ट्रांसलेशन भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्रामर में आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन भी शामिल है और मॉडल चैप्टर भी शामिल है जो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। अगर कैन और मे में आप फर्क जानोगे, कैन क्षमता, मे परमिशन के लिए। तो इसी तरह से हम लोग बहुत सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप वर्ब लो, जितना ज्यादा लो। आप बोलो कि तुम एग्जाम पास कर सकते हो, संभावना है, यू मे पास दिस एग्जाम। तुम नौकरी पा सकते हो, यू मे गेट ए जॉब, संभावना है। लॉकडाउन, कोरोना का वक्त चल रहा है, द लॉकडाउन मे इम्पोज, लागू, गवर्नमेंट जो है बैन कर सकती है, द गवर्नमेंट में बैन इट, बैन का मतलब रोक लगाना। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस में मे के जरिया से बनाते हैं। जितना वर्ब लोगे उतना अधिक से अधिक आप सेंटेंस जनरेट कर सकोगे। ये ग्रामर का आसान तरीका है, आसान मेथड है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में, कैन बहुत ही पावरफुल वर्ड है, मे उसके बाद क्षमता बताता है, उसके बाद माइट। ये तीन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैन का मतलब 100%, मे का मतलब बताया था मैंने 50% मान लीजिए संभावना,
और माइट का 30 से 40%। ये तीनों वर्ड में, तीनों मॉडल में यह डिफरेंस होता है, कैन, मे और माइट। कैन जब बोलेंगे, सपोज मुझे एक फ्लैट खरीदना है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, कीमत है उसकी, और मुझे खरीदना, मेरे पास पॉकेट में 1 करोड़ है, तब बोलेंगे कि आई कैन बाई दिस फ्लैट। इट मीन्स आई हैव 1 करोड़ रुपीज इन माई बैंक अकाउंट, सो आई कैन बाई द फ्लैट। आई एम श्योर, आई एम कैपेबल ऑफ इट, आई हैव फुल मनी अरेंजमेंट। बट वेन आई एम डाउटफुल, अरे भैया पैसा है नहीं मेरे पास, I will arrange some money. I have 50 lakh rupees in my account and I will arrange some money from my friends, from relatives, from my colleague, from my well-wishers, from my neighbor, then I'll buy the flat. I'm not sure about it. I'm not confident about it. So I will arrange some money, then I will buy it. Then you can say I may buy it. I may buy flat in Delhi. In the same way, might very less. I have 20 लाख रुपीज और बैंक से मुझे लोन लेना है, यही हैव टू। तो ये बैंक के मूड पर डिपेंड करता है कि मुझे बैंक लोन सैंक्शन करेगा कि नहीं करेगा। अब उसमें बहुत परेशानी है, तो यहाँ बहुत लेस पॉसिबिलिटीज आप शो करना चाहते हैं, तो वहाँ आप बोलो कि इट कैन रेन, मतलब पूरा मौसम घिरा हुआ है और हवाएं चल रही हैं, लग रहा है पत्तियां हिल रही हैं, बादल गड़गड़ा रहे हैं, लग रहा बारिश होगी, तो बोलो इट कैन रेन। 100% श्योर है बारिश हो रही, बूंद बूंद गिर रहा है, लग रहा है कि मूसलाधार बारिश होगी, इट कैन रेन। कैट्स एंड डॉग इन द सेम वे, इट मे रेन, मतलब कम संभावना है। और जब बोलो इट माइट रेन, मतलब मामला जो है बहुत ही लेस 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 ये है। तो इस तरह से 3 वर्ड का इस्तेमाल आप जाने एग्जाम में आता है, डिफरेंस करना, कहाँ कैन लगाओगे, कहाँ मे लगाओगे और कहाँ माइट लगाइएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। और इसे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैं विश्वास करता हूँ प्रैक्टिस पर, मेरा अपना तजुर्बा है, आई हैव माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। You cannot learn grammar by cramming the rules of grammar. You cannot learn English unless you practice it. So practice, write it down some examples on the pattern of these structures so you can gain proficiency in it. So let us see might. Might, ये मैंने डिफरेंस बताया आपको, कैन में और मे में और माइट में जो डिफरेंस होता है। अब बोलो कि आई माइट, मे का पास्ट फॉर्म माइट भी होता है, आई माइट गो देयर, बहुत कम है संभावना जाने की। कोई मेरा दोस्त आया, अरे यार तुम गया जा रहे हो, बोला अरे श्योर नहीं हूं, बहुत कम संभावना है। ये क्या मेरा रिलेटिव है, उन्हें फोन देना है इसे। तो जब हम श्योर नहीं रहे तो बोलेंगे आई माइट गो देयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट गोइंग, राइट। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बहुत सा जनरेट करेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। और माइट का मतलब सकना होता है। इसी तरह से हमने 3 वर्ड हमारे और हैं, कैन, मे, माइट मॉडल है। इसी तरह से 3 वर्ड और इधर देखिए आप, जो मॉडल है हमारे, शुड, 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 राइट, मस्ट, मस्ट, must. Pronunciation is the heart of English, okay, right? This is a ought to, ought to practice. Should, must, ought to, right? All 3 words more or less have similar meaning, but you have to know where to use should, where to use must, where use to, ought to. There is a minor difference between these 3 words. should का इस्तेमाल हम लोग वहां करते हैं जहां किसी इंसान को एडवाइस देना है, लगता है कि ये काम करना चाहिए। जैसे मेरा पेट निकला हुआ है, बोले यू शुड टेक एक्सरसाइज, देन ऑटोमेटिकली इट विल गो। तो कुछ किसी को एडवाइस करना है। उसी तरह से मस्ट,
मस्ट का इस्तेमाल वहां करेंगे, इसका मतलब भी चाहिए, लेकिन एकदम अर्जेंट है, एकदम अर्जेंट है, नेसेसिटी है। जैसे हम लोग इंसान हैं, गॉड ने हम लोगों को पैदा किया है, ऑल मैन मस्ट डाई वन डे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैन इज मॉर्टल, एवरीवन हैज टू डाई वन डे, मस्ट, अर्जेंट है। यू मस्ट सेव द पेशेंट, यू मस्ट टेक टू हिम टू डॉक्टर। किसी का ब्लड प्रेशर इज राइजिंग वेरी हाई, and if you don't take to him doctor, he will die on the way. You must take to him doctor, you must do it, you must study to pass the exam. तो must का मतलब होता है बहुत ही एकदम अर्जेंट है करना, और ये वर्ड जो है ought to, इसका मतलब भी चाहिए होता है। शुड और आउट टू में मैंने पिछले क्लास में भी एलिब्रेशन दिया था, शुड और आउट टू दोनों का मानी और मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं। अब भारतीय दुनिया में अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, अच्छे आचरण के लिए जाने जाते हैं। हम अपने बड़ों का कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी अच्छी निगाह से देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आप अपने फादर को आदेश दे सकते हैं? नहीं, कमांड नहीं कर सकते हैं कि पापा यू शुड डू दिस वर्क, नो। आप अपने सीनियर अधिकारी को ऑर्डर कर सकते हो? नो, यू कैन नेवर डू इट। तो वहां आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उस रिक्वेस्ट के वर्ड के लिए हम लोग आउट टू लगाते हैं। ये समझ लीजिए, ये बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि भैया कहाँ हम लोग शुड लगाएं और कहाँ आउट लगाएं। देयर इज अ माइनर डिफरेंस and students have some problem, confusion, and where to use it. So in my opinion, should में जनरल मीनिंग होता है, should का मतलब होता है क्या? चाहिए, it means चाहिए, है ना। must का मतलब होता है जरूर चाहिए, और ought to का मतलब होता है चाहिए, है ना। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग एडवाइस जब किसी को देना हो, सजेशन देना हो, नॉर्मली जनरल सजेशन देना हो, तो हम लोग शुड लगाते हैं, राइट। मस्ट, अरे भैया नेसेसिटी है। हेमोग्लोबिन 6 पॉइंट हो गया ना, मतलब बहुत क्रिटिकल मामला है, इसको ब्लड डोनेट करना चाहिए इमीडिएटली। यू मस्ट डोनेट द ब्लड, यू मस्ट अरेंज द ब्लड, अदरवाइज पेशेंट विल डाई। तो मस्ट का मतलब एकदम अर्जेंट काम है, वो करना है। अरे इट इज a 10 o'clock now and you have train 10:05, you must go to station now, otherwise you will miss your train. Must means urgency, it shows urgency. You must save your time, time is money, time will never come back, right? तो ये चीज शुड, मस्ट और आउट टू तीनों का मानी है जो बताया। अब स्ट्रक्चर में बताऊंगा इसे मैं क्या डिफरेंस है, मोर एलिब्रेशन। सी, ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। आप सभी बच्चे अंग्रेजी क्लास कर रहे हैं, और अंग्रेजी का सबसे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो 3 कंपोनेंट है, मैं अक्सर बताता हूं। ग्रामर, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वर्ड पावर जिसको बोलते हैं वोकैबुलरी, लास्ट एस्पेक्ट इज प्रोनाउंसिएशन। अच्छे लोग इसमें काफी पुअर हैं, प्रोनाउंसिएशन का जहां मामला हो जाता है दे फेल। तो प्रोनाउंसिएशन आप फ्रॉम द बिगिनिंग यू मस्ट फोकस ऑन इट एंड डे बाय डे यू विल इंप्रूव इट। बहुत से लोग इसे बोलते हैं यूज टू, बट इट इज ए कंप्लीटली रॉन्ग। इंग्लिश इज ए वेरी पिकुलर लैंग्वेज, अंग्रेजी में लिखते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। इसलिए हम लोगों को भारतीयों की भाषा नहीं है, ये दुनिया की भाषा है। हम लोग इसे प्रोनाउंसिएशन सीखे, इसे बोलते हैं हम लोग यूज टू प्रैक्टिस, स्पीक अप, यूज टू, डोंट से यूज टू, राइट। इन द सेम वे, सी हियर 2 words आई हैव, verb and noun, है ना। ये दिस वन वी से यूज, दिस वन वी से यूज।
It means I use mobile for calling, right? Here is a verb. And what is the use of this phone? So when we use as a noun, we say it use. When we use it as a verb, we say it use, right? Hope you understood where to say use and where to say use, right? Many students have problem. मैंने बहुत पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि कॉमन वर्ड है, वेडनेसडे कहते हैं, वेडनेसडे, बट देयर इज नो वर्ड इन वेडनेसडे. रिमेंबर वी से इट वेंसडे. डी साइलेंट हियर, डी साइलेंट. तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन पे भी हम लोग वर्क धीरे से करते जाएंगे. इसी तरह बहुत सारे अंग्रेजी में वर्ड हैं. जैसे मैंने बोलेंगे ये वर्ड देखिए, मैंने क्या लिखा, रिसीप्ट, RECEPIT, बट P साइलेंट हियर, साइलेंट. इसे पढ़ते हैं रिसीट, रिसीट. यू कैन गेट रिसीट. जब आप पैसा दोगे, व्हेन यू पे मनी हियर, यू कैन गेट द रिसीट. यू कैन गेट, यू शुड गेट द रिसीट. सो वी डोंट से रिसिप्ट, राइट. तो हम लोग फोकस करेंगे फ्रॉम इन ऑल माई क्लासेस ऑन प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो, ऑन ग्रामर ऑल्सो, एंड वी विल ऑल्सो बिल्ड योर वोकैबुलरी, बिकॉज इंग्लिश थ्री थिंग्स मस्ट इंपॉर्टेंट: वर्ड पावर, ग्रामर and pronunciation and structures. These four are the pillar of the language. तो हम लोग स्ट्रक्चर की सहायता से used to, और एक और वर्ड मॉडल होता है would, लगभग सेम मीनिंग होते हैं. more or less it has same meaning, similar meanings. to show past habitual action. अब जानते हो, जब मैं बच्चा था, when I was a kid, I used to play cricket all day long. My mother scolds me. I used to play. When I was in 5th class, I used to study English. तो used to का मतलब कोई बीती हुई बातों को, बीती हुई घटना को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम सभी लोग यूज्ड टू और वुड का प्रयोग करते हैं. ये मेजर मॉडल्स हैं. ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था. इधर एक स्ट्रक्चर आप याद रखते हो. इफ यू रिमेंबर वन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट मॉडल V1 प्लस ऑब्जेक्ट, remember one structure, you will automatically generate these 9 structures with the help of one. मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैन, जिसका मानी सकना होता है, क्षमता बताता है. अब इसमें क्या, आई कैन राइट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, बोल सकता हूं, समझ सकता हूं. तो आप ये कर लो. कुड बताया मैंने, सब मॉडल है ये. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, out, must, used to, would, all are models. अब मॉडल का स्ट्रक्चर हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, मॉडल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आप ये सारे मॉडल्स को लीजिए और सबसे एग्जाम्पल लिखिए घर में. हमारा इस कार्यक्रम का मकसद है कि ऑनलाइन के जरिए, डिजिटल मोड के जरिए आपको महारत हासिल करना. आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल master these structures. You will not have any problem. Definitely, I could pass NET exam. You may meet tomorrow. You should study abroad. You ought to respect seniors. You must consult doctor. I used to play cricket. We would go to park in the morning. Right? एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, मॉडल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और एक की सहायता से 9 बना. ये आप समझ लीजिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों को. होप यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि इसे मैंने पिछले सेशन में बताया, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूं. अब इसमें बच्चे गलती करते हैं, स्ट्रक्चर में अक्सर करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है. तो इसीलिए जब मैं क्लास शुरू किया था, अपना इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. नाउन दुनिया में नाम की चीजों को, वर्ब एक्शन वर्ड, राइट, और एडजेक्टिव इसे वो लिखते हैं एडजेक्टिव.
मैं भी जब एडजेक्टिव ही बोला करता था, जब मैंने डिक्शनरी देखा, अरे ओ डी साइलेंट हियर, तो आई नो आई टेल एडजेक्टिव, ADJ, दिस इज एडजेक्टिव, राइट। तो ये समझना है, बी इज वर्ब हेयर, बी वर्ब है, हमारा स्ट्रक्चर दूसरा नंबर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मॉडल बी नाउन एडजेक्टिव। अब जब आप इसका कैसे प्रयोग करेंगे इसे देखेंगे आप। देखिए, नाउन का मतलब नाम, एडजेक्टिव का मतलब क्वालिटी वाले शब्द। जैसे आप देखिए, लिखते हैं हैंडसम, मगर इसे पढ़ते हैं हैंडसम। ओ हैंडसम गाय, हैंडसम टीचर, हैंडसम, हैंडसम सैलरी, वी डोंट से हैंडसम, बोलते हैं ये एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल, सुंदर, एडजेक्टिव हो गया। स्मार्ट, अरे बोलो धांसू पर्सनालिटी है। डैशिंग, डिनामिक, ये सारे एडजेक्टिव हैं। बोले रॉयल, रॉयल, रॉयल लोग हैं, शाही लोग हैं, तो ये सारे एडजेक्टिव हो गए। नाउन, अब बोलो डॉक्टर है वो, ये हमारा नाउन हो गया। इंजीनियर है, ये नाउन हो गया। साइंटिस्ट है, ये नाउन हो गया। जर्नलिस्ट है, पत्रकार जिसे बोलते हैं, जर्नलिस्ट है। एडिटर है, ये नाउन हो गया। टीचर है। अब बोलिए, कैन, कैन लगाता हूं, हमारा जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मॉडल प्लस बी नाउन एडजेक्टिव, है ना। अब बोलिए मैं क्या क्या बन हो सकता हूं। आई कैन बी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक ऊर्जावान। आई कैन बी हैंडसम, आई कैन बी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हो सकता हूं। मैं ब्रेव हो सकता हूं, आई कैन बी ब्रेव। मैं लकी हो सकता हूं, आई कैन बी लकी। तो ये एडजेक्टिव का मैंने इस्तेमाल किया यहां। कैन मॉडल हो गया, बी। इसी तरह से हम लोग, अब बोलो मैं डॉक्टर बन सकता हूं, तो बच्चे क्या करते हैं, यहां वर्ब भी लगा देते हैं और साथ में बी भी लगाते हैं। सेंटेंस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो हम लोग दो में से एक चीज लगाना है, या बी लगाएंगे और नाउन लगाएंगे। बोलो कि मैं डॉक्टर बन सकता हूं, तो क्या बोलोगे, आई कैन बी ए डॉक्टर। मैं इंजीनियर बन सकता हूं, आई कैन बी इंजीनियर। एडिटर बन सकता हूं, आई कैन बी एन एडिटर, कॉन्फिडेंट है। मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, आई कैन बी साइंटिस्ट। मैं ऑफिसर बन सकता हूं, आई कैन बी एन ऑफिसर। मैं आईएएस बन सकता हूं, आई कैन बी एन आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मैं आईपीएस बन सकता हूं, आई कैन बी एन आईपीएस। तो बी लगाकर आप, मैं रेगुलर रह सकता हूं, आई कैन बी रेगुलर इन क्लास। आई कैन बी जब लगाएंगे तो इसके बाद नाउन या बी ही वर्ब हो गया, और इसके बाद नाउन लगाओ या एडजेक्टिव लगाओ। इस तरह से हम लोग सारे अपने मॉडल्स के जरिया हम लोग लगाएंगे। अब जैसे मैं टीचर हूं, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए, ही शुड बी, शुड लगाइए, सब्जेक्ट प्लस शुड बी, या नाउन या एडजेक्टिव लगाना है मुझे, इधर नाउन और एडजेक्टिव। ए गुड टीचर शुड बी, ए गुड टीचर शुड बी, एपीजे कलाम कहा करते थे, एन ऑटोनोमस लर्नर, इंडिपेंडेंट लर्नर होना चाहिए। ए गुड टीचर कैन नेवर टीच अनलेस ही स्टडीज। ए गुड टीचर शुड बी एन ऑटोनोमस लर्नर। बी शुड बी हार्ड वर्किंग, मेहनती होना चाहिए। पंक्चुअल होना चाहिए, पंक्चुअल।
रेगुलर होना चाहिए क्लास में, पढ़ाकू होना चाहिए, स्टूडियस, सोशल होना चाहिए, सामाजिक। इस तरह से आप किसी भी वर्ड का पढ़ा लिखा होना चाहिए। एडुकेटेड मीन्स शिक्षित, सिविलाइज्ड मीन्स संस्कार, जिसका अच्छा संस्कार हो, सिविलाइज्ड। तो इस तरह से हम लोग शुड के साथ लगाते हैं। इसी तरह मस्ट भी लगाइए, किसी भी मॉडल लगा लीजिए आप, बहुत जो भी मॉडल लगाकर आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल आसानी से। सब्जेक्ट मॉडल प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव होगा, है ना, राइट। अब कुछ भी मॉडल लगाओ, और टू लगा दो, बी लगा दीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से हम अगला स्ट्रक्चर की ओर आते हैं। इस सारे स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, और मुझे यकीन है कि आप इसे मेहनत करेंगे तो आप इस पर महारत और अंग्रेजी बोलने और लिखना आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट को शो करता है। कैन हैव, शी कैन हैव रिटन अ बुक, ही कुड हैव पास्ड दिस एग्जाम, यू मे हैव डन, दे माइट हैव फिनिश्ड, यू शुड हैव। तो ये पास्ट शो को शो करता है, हैव स्ट्रक्चर है। इसको भी हम लोग एलोबरेट करेंगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एग्जाम्पल मैं बहुत सा दे सकता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ सकें इसको। इसमें समझने में कोई आपको एक एग्जाम्पल देते हैं आपको इस पर हम। सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। कोई मॉडल लगाएंगे, मॉडल लिखा, इसका मतलब कैन भी लगा सकते हैं, कुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, उड भी लगा सकते हैं ना। अब पास्ट बताता है। अब बोलो आपको यू शुड हैव पैसा बचाना चाहिए था, तो यू शुड हैव सेव्ड मनी। आपको समय पर आना चाहिए था, यू शुड हैव कम ऑन टाइम। आपको अपने माता पिता का देख रेख करना चाहिए था, तो यू शुड हैव लुक्ड आफ्टर योर पेरेंट्स। लुक्ड आफ्टर मतलब देख रेख करना, योर पेरेंट्स। आपको IAS बनना चाहिए था, यू शुड हैव बिकम एन IAS, यू शुड हैव बिकम एन IAS। आपको क्लास अटेंड करना चाहिए था, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। आपको किताब लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन अ बुक। तो इस तरह से आप जो है बहुत सा एग्जाम्पल बनाएंगे। इसको पॉजिटिव में, नेगेटिव में, क्वेश्चन में, नेगेटिव क्वेश्चन में आप आसानी से चेंज कर सकते हो। एक सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से क्वेश्चन, क्वेश्चन से नेगेटिव क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। इसका मैंने काफ़ी आप लोगों को पिछले सेशन में बताया है। सेंटेंस की जब मैं कैटेगरी पढ़ा रहा था, तो होप यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन दिस। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप लोग शुड के जगह पर मस्ट भी लगा सकते हो, यू मस्ट हैव। कुड हैव लगा सकते हैं, मस्ट हैव। आपको एक तीर से दो निशाना करना चाहिए था। एक तीर से दो निशाना करना, अंग्रेजी में बोलते हैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, है ना। अंग्रेज फ्रेज से भी आता है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाना करना। एक, है ना। आपको बहती गंगा में मौके का फायदा उठाना चाहिए, मेक है वाइल, है ना, सनशाइन। तो ये सारे चीजें हैं
आपको प्रैक्टिस करना है, अंग्रेजी प्रैक्टिस से आएगी। और एक और स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं, 3 वर्ड है, सब्जेक्ट, मॉडल, बी प्लस V4। अब इसमें देखिए मॉडल हम 3 लगाएंगे, मे बी, मे, मस्ट, शुड। वह जा रहा होगा, ही मे बी गोइंग, वह आ रही होगी, सी मे बी कमिंग। आप लोग अंग्रेजी सीख रहे होंगे, यू मे बी लर्निंग इंग्लिश, आप मेरा सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, यू मे बी एंजॉइंग माई सेशन। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप यू मे बी प्रैक्टिसिंग द ग्रामर। तो इस तरह से सेंटेंस मस्ट बी, जरूर, वह जरूर आ रहा होगा। मेरा क्लास 12 बजे है एंड नाउ इट इज 11:55, ही मस्ट बी कमिंग बिकॉज ही हैज टू टेक क्लास, ही मस्ट बी कमिंग। आपका एग्जाम करीब में आ रहा है, योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, और आप लोग कड़ी मेहनत जरूर कर रहे होंगे, यू मस्ट बी वर्किंग हार्ड। तो इस तरह से हम लोग आसानी ढंग से बनाते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे अंग्रेजी में महारत आप हासिल कर सकते हैं। और मैं भाषा में महारत करना, रातों रात किसी इंसान महारत नहीं हासिल कर सकता है। डे बाय डे, एवरी डे आई लर्न, एवरी डे I still learn. Learning never ends. Learning goes on, and it is said that education is an ongoing activity. So you all have to practice a lot to gain mastery in grammar and in English. So आज मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे मॉडल पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मैंने बताया, सब्जेक्ट, मॉडल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा बताया सब्जेक्ट, मॉडल, बी, नाउन, एडजेक्टिव। तीसरा बताया सब्जेक्ट, मॉडल, हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं समझता हूं ये 3 स्ट्रक्चर के जरिए आप कम से कम 50 स्ट्रक्चर बना सकते हो अंग्रेजी के। और सिर्फ आप 2 चैप्टर पर महारत कर लो, टेंस और मॉडल। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल स्पीक इंग्लिश, ब्रिलियंटली स्पीक इंग्लिश, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इसी 2 चैप्टर फोकस करते हैं और बच्चे ऑटोमेटिकली, और इसी 2 चैप्टर से हम लोग जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन हमारा होता है इसी पर फोकस करते हैं और इससे महारत हासिल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे हमारा ऑनलाइन सेशन एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे ढंग से देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप इसे बार बार हमारी वीडियो को देखिए। जहां कंफ्यूजन लगे, जहां डाउट लगे, जहां परेशानी आए, जहां आपको किसी पॉइंट को समझने में नहीं आए, तो हमारे YouTube चैनल में एक कमेंट सेक्शन दिया गया हुआ है। आप अपनी जाके कमेंट दें वहां कि सर आई एम गेटिंग प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। सो योर क्यूरियोसिटी, आप अपनी क्यूरियोसिटी को जाहिर कीजिए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आप अपने सजेशन से, आप अपने कमेंट से, आप अपने फीडबैक से अपनी राय को जाहिर करें, ताकि मैं अपना अगला क्लास और बेहतर कर सकूं, आप लोगों के लिए बेहतर ढंग से हेल्प कर सकूं, आपके एग्जाम के लिए, आपका इंटर का सिलेबस कंप्लीट हो सके। और लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल जो गया गाइडेंस चैनल है इसे करें, ताकि हम लोगों का ड्रीम है, हम लोगों का सपना है कि बिहार ही नहीं पूरी दुनिया के बच्चे आज दुनिया कर लो मुट्ठी में। पूरा इंटरनेट से के माध्यम से हम लोग गांव एक ग्लोबल विलेज बन गया है, जिसके कारण हम लोग दुनिया के टीचर क्लास एंजॉय कर सकते हैं। बिहार ही का नहीं, पूरे दुनिया के लोग हमारे ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अच्छे ढंग से पढ़ें, बिहार का नाम रोशन करें। और थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।